morning, welcome back to my channel Biotic Brains. Okay, I already said about the autotrophic mode of nutrition, and now there will be different other mode of nutrition in the plants. Okay, the leaves other than the green color, they also have the chlorophyll. Okay, the large amount of red, brown, and other pigment mask the green color, so the photosynthesis will be takes place. I already said that chlorophyll is the major pigment, or you can say this is the most important pigment that is necessary for the photosynthesis process. And you all seen in your surrounding that there are different color of leaves, any of brown color, any of violet color, or you can see that any of red color. What do you think? They don't have the chlorophyll, because chlorophyll is the major important pigment that will give green in color. If that leaf didn't contain the green color, what do you think? There will be no presence of chlorophyll, or there will be presence of chlorophyll. If there will be no presence of chlorophyll, then the photosynthesis may be not takes place. I already said about in my first lecture that how light is most important and chlorophyll pigments are most important for the photosynthesis. If you are saying that the red, the brown, the other color of the leaf, they don't have the chlorophyll, then there will be no photosynthesis takes place in that leaf. What do you think? Photosynthesis occur or not occur? The photosynthesis will be occurred. The green color, or you can say that the green color, or you can say that the leaf color is red in color. That means there will be presence of chlorophyll, but that chlorophyll will be masked. Okay, that green pigment or that green color, because of the presence of chlorophyll, that will be masked by the other pigments that are necessary for the red and brown in color. Understanding what I'm saying? I'm saying chlorophyll is the pigment that will help in giving green color to the leaf. Okay, there are different other pigments also. They are responsible for the red and the brown color for the leaf. I am saying these pigment which are responsible for the red and brown color, they gonna, what they do, they going to mask the chlorophyll. That's why the leaf color will be red and brown. I'm not saying that chlorophyll is not present. Chlorophyll is present, but these pigments that have the potency, that have the potential to give red color or to give the brown color, they have the ability to mask the chlorophyll pigment. That's why the green color is not visible to eye. The leaf will be which color? The leaf will be red or the brown color. So the photosynthesis will be take place because there will presence of the chlorophyll. So the photosynthesis will be occurred. But that chlorophyll is masked by the pigment that are responsible for the red brown color of the leaf. Okay. Then the green patches to the pond or the stagnant water body, this generally formed by the growth of an organism that is called algae. I think you all know about the algae. Algae is the organism that is present in the stagnant water or any pond surface. कोई भी pond surface हो या फिर stagnant water हो, वहाँ पे क्या करता है? वहाँ पे algae grow करते हैं. Algae कैसे color के होते हैं? Green in color. You may see different green patches under the stones that are present in the pond surface or any stagnant water. That green patches are nothing but they are the algae. Okay, then move to the next other mode of nutrition. One first mode of nutrition is the host and parasite.
let's see what is host and parasite. Okay, let's move to the whiteboard so that you can understand in better way. Okay, one plant is the host plant and another is the parasite. Okay, host plant is the plant, host is the plant that have its own chlorophyll. What I'm saying? Host is the plant that have its own chlorophyll, means there will be presence of chlorophyll pigment. But in this case, means in the parasite, there will be no presence of chlorophyll pigment. समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? होस्ट एक ऐसा प्लांट है जिसके पास खुद का अपना क्लोरोफिल है, लेकिन पैरासाइट क्या है? जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है ही नहीं. If there will be absence of the chlorophyll, that means there will be no photosynthesis. अब यहाँ पे क्लोरोफिल है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस भी नहीं है यहाँ पे. अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है तो खाना कैसे मिलेगा उन लोग को? हाउ दे सिंथेसाइज स्टार्च मॉलिक्यूल? सोचो, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है या तो एक लिविंग थिंग्स है, एक प्लांट है, उसमें क्लोरोफिल है ही नहीं और वहां पे फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है, लेकिन उसे जिंदा रहना है, उसे सरवाइव करनी है. उसे सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. और वो कहाँ से फूड लेके लाएगा? वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर. तुम लोगों ने शायद एक प्लांट सुना होगा, कॉस्कटा प्लांट. बहुत सारे स्कूल के गार्डन में भी होता है, घर में भी बहुत बार दिखाया जाता है. कॉस्कटा प्लांट है. वो कॉस्कटा कौन सा प्लांट है? वो एक पैरासाइट है. कोई भी पेड़ होगा उसके ऊपर क्या होगा? कॉस्कटा प्लांट होगा. तुमने कभी देखा है कि कॉस्कटा प्लांट खुद से ही वो अपना सरवाइव कर रहा है, किसी के ऊपर नहीं है? वो देखा है कभी? वो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो क्लोरोफिल पिगमेंट ही नहीं है. अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वो इंडिविजुअली कैसे सरवाइव करे? तो उसको सर्वाइवल रहने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए उसे किसकी जरूरत है? होस्ट प्लांट की, जिसके पास ऑलरेडी उसका अपना क्लोरोफिल पिगमेंट है और वो खुद से ही अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है. समझ रहे हो इस बात की? होस्ट में डिफरेंस क्या है? होस्ट और पैरासाइट में बस इतना ही डिफरेंस है कि होस्ट के पास क्लोरोफिल है, पैरासाइट के पास क्लोरोफिल नहीं है. अब होस्ट के पास क्लोरोफिल है तो उसके पास फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, उसके पास खुद का भी फूड है. लेकिन पैरासाइट क्या है? उसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, तो उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है. तो वो क्या करेगा? होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड होगा. अभी देखो, तुम सब पढ़ाई कर रहे हो 7th क्लास में, तो अभी तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जीरो, क्योंकि तुम जॉब नहीं कर रहे हो. तो तुम किसके ऊपर डिपेंड हो? पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो. तुम्हारे सारे घर में जितने भी पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा हैं, सब जॉब कर रहे हैं. अब अगर मंथली उन्होंने तुम्हें पॉकेट मनी दिया ही नहीं, तो क्या तुम्हारी जो सरवाइव है, खाना तुम्हें नहीं दिया, पहनने के लिए न्यू ड्रेस नहीं दिया, तो क्या तुम्हारा मतलब डिक्टेट नहीं हो जाएगा? तुम सर्वाइवल कैपेसिटी कम नहीं हो जाएगा? इसी तरह तो तुम अभी क्या हो? पैरासाइट हो. होस्ट क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स हैं जिनके ऊपर तुम डिपेंड हो. उनके पास सब कुछ है, उनके पास नौकरी है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अभी तुम उस एज में नहीं हो कि तुम जाके बाहर में किसी इनकम कर सको. तो अभी के लिए तुम पैरासाइट हो. समझ रहे हो इस बात को? अब देखो नेक्स्ट.
नेक्स्ट हम देखेंगे कि होस्ट पैरासाइट का मैंने एग्जाम्पल क्या बताया। होस्ट और पैरासाइट का एग्जाम्पल है ये वाला कॉस्काटा प्लांट। ओके, द प्लांट कॉल्ड कॉस्काटा दे डोंट हैव क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं है। सो इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइम, दैट इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। तो किसके ऊपर क्लाइम करेंगे? जिसके पास खुद का क्लोरोफिल पिगमेंट है। एंड इट डिप्राइव का मतलब क्या है? लेना। द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, अगर उसके पास, मैंने क्या बोला, अगर क्लोरोफिल हो रहा है इसका मतलब उसके पास न्यूट्रिएंट है, तभी तो न्यूट्रिशन प्रोसेस हो रहा है। तो उसके पास क्या है? जितने भी सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो कौन ले रहा है? कॉस्काटा प्लांट्स ले रहे हैं। और कॉस्काटा प्लांट को हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। समझ में आ गया ये चीज कि होस्ट और पैरासाइट में डिफरेंस क्या है, और हम कौन सी प्लांट को होस्ट बोलेंगे और कौन सी प्लांट को पैरासाइट बोलेंगे। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट। What do you think? The host parasite interaction is the autotrophic mode of interaction or the heterotrophic mode of interaction? ये वाला आंसर्स मुझे कमेंट्स में देना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में, अगर मेरा कमेंट सेक्शन ऑन रहा तो उसमें कमेंट सेक्शन में बताना कि होस्ट और पैरासाइट का जो इंटरेक्शन है दैट विल बी द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और द हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि एक ऐसा प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस। वोरस का मतलब तुम्हें पता है क्या है? ईटर। क्या बोलते हैं उसको? ईटर। इसका मतलब जो इंसेक्ट को ईट करता है उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला प्लांट, इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। The pitcher or the jog-like structure is the modified part of the leaf. अब लीफ का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, क्या है वो? जॉग लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। दिस इज द फीचर और द जॉग लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द modified part of the leaf. If I am saying that this is the modified part of the leaf, that means it's quite developed from the leaf, right? And the apex of the leaf contain a lid which can open and close. यहाँ पे देखो ये वाला lid, ये क्या 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 कर सकते हैं? उसको ओपन भी कर सकते हैं, उसे बंद भी कर सकते हैं। कभी कोई भी केमिस्ट्री लैब गए हो? वहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब होगा, वहाँ पे या तो फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स रहते हैं, उसमें देखना ऐसे ढक्कन आता है, उसी तरह वो दिखता है। उसको तुम ओपन भी कर सकते हो, उसको तुम बंद भी कर, मतलब क्लोज भी कर सकते हो, या तो ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, the mouth of the insectivorous plant has the hairlines edges that snap or short as soon as the insect touches the hair and thereby trapping the insect. अब मैं बोल रही हूँ कि insectivorous plants का मतलब क्या है? Those plants they eat the insect. अगर वो लोग इंसेक्ट खा रहे हैं इसका मतलब कुछ तो होगा उनमें स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। तो क्या है? हेयरलाइन स्ट्रक्चर्ड है। समझ में आ गया? द इंसेक्टिवोरस प्लांट हैव हेयरलाइन स्ट्रक्चर्स। कहाँ पे? इनसाइड दैट पिक्चर। यहाँ पे जो पिक्चर है ना ये वाला, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ऐसे अगर अंदर से तुम देखोगे तो ऐसे सारे हेयर लाइन स्ट्रक्चर से सब। ठीक है, एंड सम ऑफ द प्लांट्स स्टैक they covered with the sticky mucus like substance where the insects stick. अगर कोई इंसेक्ट, अंदर में मैं क्या बोल रही हूँ? हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। अगर कोई इंसेक्ट गलती से भी जाके वहां पे गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा? पिक्चर के अंदर ये वाला जो जॉग लाइक का स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक चीज होता है, वो क्या है? म्यूकस लाइक सब्सटेंस, थोड़ा स्टिकी है। जैसे जेल नहीं होता है, जेल थोड़ा स्टिकी होता है, तो उसी तरह एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस होता है। तो वो क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। अगर किसी स्टिकी चीज में अगर तुम डाल दोगे तो क्या वो निकलेगा? वहां से नहीं निकलेगा। तो उसी तरह एक स्टिकी म्यूकस सब्सटेंस होता है जिससे इंसेक्ट क्या होता है? ट्रैप हो जाता है वहां पे। स्टिक टू दैट स्टिकी म्यूकस सब्सटेंस एंड दे कैन नॉट मूव एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब क्या हुआ? अब उस म्यूकस के लेयर में क्या हुआ?
इंसेक्ट जाके ट्रैप हो गया। उसी टाइम पे क्या हुआ, ये प्लांट ने अपना लीड को बंद कर लिया। अब अंदर में क्या होगा, क्या वो इंसेक्ट बाहर सराउंडिंग में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब तो लीड बंद है। एंड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्या बोलते हैं उसे, इंसेक्टिवोरस प्लांट, दे विल, then the insectivorous plant secrete and digestive enzyme। अब क्या क्या, उसने एक डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट किया, दैट विल डिजॉल्व द इंसेक्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब उसे एब्जॉर्प्शन करना है, डिफरेंट प्रोसेस होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, दीज आर द प्रोसेस दैट occur while I am eating or while that plant is eating, right? अब उसने क्या किया, इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेयरलाइन स्ट्रक्चर्स। अब पिक्चर के अंदर में क्या हो रहा है, डिफरेंट म्यूकस लाइक सब्सटेंस आर प्रेजेंट एंड दैट विल हेल्प टू स्टिक द इंसेक्ट एंड दिस नाउ, and at that time there will be closing of the lid, then there will be secretion of some of the digestive enzyme. What is the meaning of digestive enzyme? The enzyme that are responsible for digestion of any substance or any organism, that is known as the digestive enzyme, so that they can dissolve the insect for the absorption. Understanding what I'm saying? This is all about the insectivorous plant. Okay, insectivorous plant is nothing but a plant that have the capacity to eat an insect and produce some of the digestive enzyme so that it can digest that insect for the absorption. Then move to the next slide, that is the saprotrophic mode of nutrition. Okay, saprotrophic mode of nutrition. The fungi absorb the nutrition from the dead and the decaying matter. That is called the saprotrophic mode of nutrition. I already talked about the autotrophic mode of nutrition. Then second one is the heterotrophic mode of nutrition. But you need to say in the comment box that is host parasite is the heterotrophic mode of nutrition or the autotrophic mode of nutrition. Okay, and here let's study about the saprotrophic mode of nutrition. Okay, the fungi absorb the nutrition from the dead and decaying matter. That is called the saprotrophic mode of nutrition. Such organism with saprotrophic mode of nutrition, they are saprotrophs. तो जो सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, साप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, साप्रोटोप बोलते हैं। जैसे जो सारे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। उसी तरह जो सारे ऑर्गेनिज्म, जो सारे प्लांट्स हेट्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाएंगे, हम उन्हें हेट्रोटॉप्स बोलेंगे। उसी तरह तो सप्रोटोपिक का मतलब क्या होता है, इफ यू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकाइंग मैटर। जब भी सप्रोटोपिक की बात आए ना, दिमाग में आना चाहिए डेड एंड डिकाइंग मैटर। ओके, ये चीज दिमाग में आना चाहिए, डिकाइंग मैटर। Okay, moisture also play and the important factor in the growth of the fungus. कभी तुमने देखा होगा, तुमने किसी भी ब्रेड को देखो, ब्राउन ब्रेड हो या फिर तुम नॉर्मल वाला जो ब्रेड है उसी को देखो, तुमने घर में फ्रीज में ना रख के तुमने क्या किया होगा, किसी भी जगह पे घर में बेडरूम में हो या कहीं पे तुमने रख दिया उसे, और तुम भूल गए कि वहां पे तुमने ब्राउन ब्रेड रखा हुआ था। अब क्या होगा, 15 दिन के बाद तुम देख रहे हो वहां पे क्या हुआ है, ग्रीन कलर का सारे पैचेस हो गए हैं। तो वो ग्रीन कलर का पैचेस क्या है, वो फंगस है। क्या है, फंगस। अब ये सोचो, उस रूम में पहले से फंगस था नहीं, अब तुमने एक ब्राउन ब्रेड को 15 दिन तक नोटिस नहीं किया, उसको वहां पर रख लिया, तो वहां पे फंगस हो गया। तो फंगस कहाँ से आए, द फंगस, फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस moisture is the important factor. If the moisture will be high, then there will be the growth of the fungus will be high. So fungus का arise कहाँ से हुआ है, from the moisture content. Okay, the fungal spores are generally present in the air. जितने भी सारे fungal spore हो वो कहाँ पे होते हैं, that are present in the air when they landed on the wet
और द वन थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। उन्हें जर्मिनेशन करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एक वेटलैंड चाहिए या तो फिर एक वन थिंग्स चाहिए। समझ में आ गया? वो फंगल का स्पोर है, जहां से फंगस का ग्रोथ हो रहा है, जहां से फंगस का जर्मिनेशन हो रहा है, जहां से वो ग्रो कर रहे हैं, वो सारे कहाँ पे है? दे आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। That's why when they are landed in any wet area or any warm things, they start germinating, they start growing. That's why the fungus or the growth of fungus having the most important factor is the moisture. Understanding what I'm saying? I'm saying that moisture is the most important factor for the germination, for the growth, and for the development of fungus in your brown bread. Okay, I think this slide will clear for you. Then next, move to the next slide. This is the most important thing, symbiosis. What's the meaning of symbiosis? The organism live together and share both shelter and nutrient. That relationship is called symbiosis, just like the rhizobium and the leguminous plant. See, अभी मैं क्या बोल रही हूँ? सिम्बायोसिस। इसका मतलब अगर ए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और बी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू सरवाइव, उन्हें जिंदा रहना है, ठीक है, टू सरवाइव। ये भी यही चाहता है, ये भी यही चाहता है, लेकिन इसके पास कुछ चीजें नहीं है जिसके वजह से वो जिंदा रह सके, लेकिन इसके पास वो चीज है जिसके पास वो जिंदा रह सके। लेकिन इसके पास भी ऐसा कुछ चीज है जो इसके पास ऐसा भी चीज है जो नहीं है लेकिन इसके पास है। इसका मतलब, और अच्छे से सुनो, आई एम सेइंग ए इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बी इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, मैं बोल रही हूँ कि इसके पास इसको खाने के लिए राइस चाहिए और दाल चाहिए, ठीक है, और एक चिकन करी चाहिए, ठीक है, चिकन करी चाहिए। इसके पास ये तीनों चीज है। अभी मैं बोल रही हूँ बी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास राइस तो है, दाल भी है, लेकिन इसके पास क्या है? पनीर है। ओके, इसके पास क्या है? पनीर करी है। लेकिन अभी ए का मन क्या है ना, वो चिकन नहीं खाता, वो तो वेज ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो नहीं खाता। पर बी क्या है? उसे पनीर पसंद नहीं है, उसके पास पनीर तो है पर उसे पनीर पसंद नहीं है, वो कभी पनीर खाना ही नहीं चाहता। तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। क्या होगा? ये बोलेगा भाई तू मुझसे चिकन ले ले और मुझे तू पनीर दे दे। समझ में आ गया? तो इस चीज को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और दैट रिलेशनशिप इज नथिंग बट सिम्बायोसिस। दैट मीन्स अगर इसे चिकन करी खाना है तो किसके ऊपर वो डिपेंड होगा? ए के ऊपर डिपेंड होगा। अगर इसे पनीर खाना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? बी के ऊपर डिपेंड होगा। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? सिम्बायोसिस बोलते हैं। दैट्स द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ए एंड द बी। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो द एग्जांपल इज द राइजोबियम एंड द लेगुमिनियस प्लांट। अब देखो इन दोनों में कैसे रिलेशनशिप हो रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में क्या होता है? नाइट्रोजन है। अब मैं बोल रही हूँ राइजोबियम बैक्टीरिया, और मैं बोल रही हूँ प्लांट। कौन सा प्लांट? लेगुमिनस प्लांट। अब मुझे बताओ लेगुमिनस प्लांट का मतलब क्या है? इतने सारे पल्सेस होते हैं, पल्सेस के जो प्लांट होते हैं ना उनको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। अब देखो एटमॉस्फेयर में N2 है। अब प्लांट को अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट करने के लिए N2 चाहिए, लेकिन इसके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ?
इसके पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो क्या करे, इट शुड ट्रैप द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब राइजोबियम के पास क्या है, वो स्ट्रक्चर है जिससे वो क्या करे, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को ट्रैप कर सके, और दैट विल कन्वर्ट इनटू द यूजेबल N2। और ये यूजेबल N2 को लेने के लिए प्लांट्स के पास वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या होगा, लेगुमिनियस प्लांट और प्लांट के बीच में क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा। दैट्स द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड द लेगुमिनियस प्लांट। अब राइजोबियम बैक्टीरिया के पास ये स्ट्रक्चर तो है, बस उसको रहने के लिए शेल्टर नहीं है। तो प्लांट्स क्या बोलेगा, भाई तुम मुझे N2 दे और मेरे से क्या ले, शेल्टर ले ले। तू मेरे रूट में रुक जा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है तू एटमोस्फेयर की N2 को ले और उसको थोड़ा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर और मुझे दे, ताकि मेरे ग्रोथ डेवलपमेंट भी हो और तुझे भी जिंदगी भर शेल्टर मिले। That's the mutual understanding between the rhizobium bacteria and the plants. That's why they are the greatest example of the symbiotic relationship. Understand what I'm saying? I'm saying the symbiotic relationship is always built between the rhizobium bacteria and the leguminous plant. Okay, then let's move to the slide. Nitrogen gas is plentifully present in the air. I already said that. Plants cannot use it in the manner they use the carbon dioxide. Plant के पास वो efficiency है that will trap the carbon dioxide with the help of stomatal pore. And they need the nitrogen in the soluble form. उसके use करने के लिए क्या होगा, atmospheric N2 should convert into the soluble form. And this soluble form is used by the leguminous plant. Okay, so plants provide food and shelter to the bacteria, and the rhizobium can take the atmospheric nitrogen and convert into the soluble or usable form. And this association became benefit for the farmer. अब अगर सॉइल में नाइट्रोजन है ही नहीं, उसके पास ये एफिशिएंसी नहीं है कि वो नाइट्रोजन को ट्रैप कर सके, तो फार्मर को क्या देना पड़ेगा, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स दैट कंटेनिंग द नाइट्रोजन। अब अगर उसके पास राइजोबियम बैक्टीरिया है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, देन देयर विल बी नो नीड ऑफ गिविंग द फर्टिलाइजर्स। So that made reduce the use of nitrogenous fertilizer where the legume plant are grow. So that's became this association, this symbiotic association became benefit for the farmer. Okay. So I think up to this there will be completion of this topic, that is the nutrition in plant. Okay, bye. See you in the next lecture.